Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to deliver the next topic of chapter number 10, that is nucleophilic substitution reactions of alkyl halide. This is extremely important long question according to board paper point of view. My dear students, there are two different types of reactions of alkyl halide, that is nucleophilic substitution reaction and beta elimination reaction. Now, first of all, we will discuss nucleophilic substitution reactions. My dear students, definition. What is nucleophilic substitution reaction? When attacking nucleophile attacks on electrophilic carbon of alkyl halide, which is called substrate, then halogen group will be replaced, called leaving group, and nucleophile will be attached on the electrophilic carbon. So we can say that one nucleophile has replaced and other nucleophile has been added. Such reactions are called nucleophilic substitution reactions. Hence, let us take the example. This is the attacking nucleophile when it will attack on substrate, that is alkyl halide. ये suppose that this is CH3, X may be bromide, chloride, fluoride or iodide, and when an attacking nucleophile attack on electrophilic carbon, अब electrophilic carbon किसकी? alkyl halide. This is the carbon which is attached next to directly with halogen is called electrophilic carbon. This is also called alpha carbon. जब इसके ऊपर अटैक करेगा, what will happen then? And this alkyl halide is called substrate. Then what will happen? Product will be produced. This nucleophile will add. nucleophile जो है वो ऐड हो जाएगा, और जबकि ये जो X है, इट इज अनदर न्यूक्लियोफाइल, यानी एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है एंड सेकंड न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है. दिस X नेगेटिव इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप. माय डियर स्टूडेंट्स, एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैच्ड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. और ये क्या किया, इसने इस हैलोजन को निकाल दिया, और यानी इस न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया और खुद इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ अटैच हो गया. दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction and their mechanism we will discuss in detail today. Number 1, SN2 mechanism. Number 2, SN1 mechanism. Students, SN2 mechanism, it is also called bimolecular nucleophilic substitution reaction. Now, when nucleophile, that is OH group, will attack on electrophilic carbon of this primary alkyl halide, ये जो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, ये याद रखें, SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हेलाइड देते हैं. अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, देन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट विल बी प्रोड्यूस्ड. अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. अब ये देखें, ये लिविंग ग्रुप, ये क्लोराइड है जो लिविंग ग्रुप है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, इसकी अपोजिट साइड से. यहां से ग्रुप ने लीव करना है और ये अटैक इसकी अपोजिट साइड से अटैक होगा. ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है,
जबकि ये वाला लीविंग न्यूक्लियोफाइल है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर देखा कि ये अटैक अपोजिट साइड से हो रहा है, बिकॉज बोथ लिविंग ग्रुप। अब देखें, अब ये अटैक अपोजिट साइड से क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अटैक अपोजिट साइड से होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, both breakage and formation of bond will takes place in single step। ये जो होल मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन का, it will complete in single step only। And number 2 point is only primary alkyl halide give SN2 mechanism। Students, now the point number 3, nucleophile attacks from opposite side of leaving group। And now the hybridization state which takes place over here, that hybridization change from, अब ये वाला जो सबस्टेट था इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी थी? sp3। जबकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी? sp2। जबकि जो प्रोडक्ट बना हमारे पास इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये दोबारा sp3 हो जाएगी। और इसमें व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या हुआ, ये जो लीविंग ग्रुप है, ये क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन विल लीव एंड इन दिस वे प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह आ गया, यानी एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। एक बड़ी अहम चेंज नोट करें, इसमें देखें रिएक्टेंट के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल है कौन सी साइड में है? राइट साइड पर। जबकि प्रोडक्ट के अंदर देखें न्यूक्लियोफाइल कौन सी साइड पर अटैच हुआ है? लेफ्ट साइड पर। अब इसका मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट है, और इसको जब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बात याद रखें, जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करे और अपोजिट साइड पर अटैच हो, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी क्लोराइड आयन जो है ये देखें ये राइट साइड पर था, जबकि OH ग्रुप जो ऐड हुआ है वो लेफ्ट साइड की तरफ ऐड हुआ है। वी कैन से दैट देयर इज 100% inversion of configuration in sp2 mechanism। My dear students, as the reaction takes place in single step, ये single step में हो रहा है, so rate of reaction will depend upon both alkyl halide, that is substrate, यानी rate of reaction अल्काइल हेलाइड को सबस्ट्रेट भी कहते हैं, अल्काइल हेलाइड पर डिपेंड करेगा, एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और सबस्ट्रेट पर, दैट इज सबस्ट्रेट क्या है? अल्काइल हेलाइड, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो है ये जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है K इंटू RX अल्काइल हेलाइड, OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, अब रेट एक्सप्रेशन के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। 1 + 1 = 2 होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है, अब देखें ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है ये सिंगल स्टेप होता है, यानी सिंगल होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल कौन थे? एक देखें ये सबस्ट्रेट, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए
as two molecules are involved, therefore the molecularity, इसकी जो molecularity होगी वो क्या होगी, 2 होगी। Students, now the point number 8, इस रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप सिंगल होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, इस जिसकी वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है। पॉइंट नंबर 9, whole reaction of SN2 mechanism will takes place in single step. And last point is that number 10, it takes place in the presence of non-polar solvent. अब आगे हम पढ़ेंगे SN1 mechanism, वो पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, लेकिन ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। एंड लास्ट पॉइंट, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ देखें पूरे मैकेनिज्म में कहीं भी कार्बोकैटायन नहीं बना, जबकि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, जबकि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। फ्रेंड्स, नाउ पॉइंट नंबर 10, SN2 मैकेनिज्म के अंदर कोई आयन नहीं बनता, नो आयन विल बी फॉर्म्ड। अब इसके अंदर जो है नो, किसी ने देखा आपने कि आयन बना है, नो आयन विल बी फॉर्म्ड, और जब आयन नहीं बनता तो इट मींस दैट SN2 रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि SN1 मैकेनिज्म जो है ये SN1 जो है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। मैंने आपको रीजन बता दी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन SN2 mechanism, लेकिन but in SN1 mechanism carbocation is formed. This is all about SN2 mechanism. My dear students, now I am going to discuss the next type of SN reaction, that is SN1 reaction. It is called unimolecular nucleophilic substitution reaction. Now इन SN1 मैकेनिज्म, ये जो मैं बताता चलूँ, ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो बॉन्ड है किसका, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ये जो हेलोजन के साथ ये जो कार्बन लगी हुई है, इस कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कहते हैं, या इसको अल्फा कार्बन का नाम भी देते हैं। इस कार्बन को जो है अल्फा कार्बन भी देते हैं। आप देखें माय डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट स्टेप जो है क्या होता है, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। अब और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, दैट इज अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा इन द फर्स्ट स्टेप, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा फर्स्ट स्टेप में। क्यों? क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है या अल्फा कार्बन है, इसके साथ 1, 2 एंड 3 बल्कि ग्रुप्स 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस नहीं देते। तो इसलिए जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई SN1 मैकेनिज्म डज नॉट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। माय डियर स्टूडेंट्स, और जबकि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब इसमें मैंने बल्कि ग्रुप्स का भी बता दिया, सारी डिटेल आपको बता दी। पॉइंट नंबर 2 इज, ये जो मैकेनिज्म है SN1 का टर्शरी अल्काइल हैलाइड देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था ये जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देते हैं, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कैन गिव SN1 मैकेनिज्म। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो होगा और फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा किसका, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफाइल X जो लगा हुआ है इसके दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला स्टेप जो है वो कौन सा होगा, रिवर्सिबल होगा। अब इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, जबकि मैंने यहाँ बताया था कि ये वाला जो SN2 रिएक्शन है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, जबकि SN1 मैकेनिज्म विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ
polar solvent that is ethanol and acetic acid। और इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है X जो था ये छोड़ देगा, ये यहां से निकल जाएगा। एंड इन दिस वे व्हाट विल हैपन, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और यहां हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कोई आयन नहीं बनता, इसलिए जो है ये वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। कौन सा मैकेनिज्म, SN2, जबकि SN1 जो है देखें इसमें आयन बन चुका है। तो दैट इज वाई दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। अब इसमें कैटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन होगा ये स्टेबल होगा और इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जबकि जो सबस्ट्रेट था इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट ये जो फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो था नाउ, बट सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट होगा। नाउ द सेकंड स्टेप इज फास्ट। अब इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन जो है कभी, अब इसमें कार्बोकैटायन के ऊपर अब ये क्या हो रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH विल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब कार्बोकैटायन जो है दोनों साइड से, ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है कार्बोकैटायन के दोनों साइड से अटैक करने की एबिलिटी रखता है। अब देखें, अब मैं आपको एक बड़ी अहम चीज बताने वाला हूं। अब देखें किस साइड से न्यूक्लियोफाइल निकला है, कहां पर लगा हुआ था लिविंग ग्रुप, राइट साइड पर। और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोबारा लगाया ये भी कौन सी साइड पर लगा, राइट साइड पर। देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट माय डियर स्टूडेंट्स, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी राइट साइड पर अटैच हुआ और जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी राइट साइड पर अटैच था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई। और अगर इन्वर्जन हो जाए, अगर ये अपोजिट, ये देखें इस न्यूक्लियोफाइल में जो है यहां पर क्या हुआ, ये अपोजिट साइड पर लगा था और इसलिए इसको क्या कहा था हमने, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, के कॉन्फ़िगरेशन उल्ट हो गई है, वो नहीं हालत रही जो पहले थी। लेकिन यहां क्या हुआ कि ये जो OH अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर ये उसी साइड पर अटैच हो जाए जिस साइड से लिविंग न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों को जो है इसका कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता कि व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें, अब इसके अंदर SN1 मैकेनिज्म के अंदर याद रखो एक 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। प्रोडक्ट 50% इस टाइप का बनेगा और 50% इस टाइप का बनेगा। अब दूसरा देखें, अगर यही न्यूक्लियोफाइल इसके लेफ्ट साइड पर अटैक करे तो फिर क्या होगा, OH ग्रुप अपोजिट साइड में लगेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये SN1 मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, जबकि SN2 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थी, क्योंकि इसमें अटैक हमेशा अपोजिट साइड से होना है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोकैटायन के दोनों साइड पर अटैक होगा, तो जिसकी वजह से 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। नाउ ये हमने पॉइंट नंबर 4, 5 और कर लिए। पॉइंट नंबर 6, माय डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट नंबर 6 अब देखें रेट ऑफ रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है इन्वॉल्व होता है। अब देखें जो स्टेप स्लो होता है, कौन सा स्टेप स्लो है, ये पहला स्टेप स्लो होता है, तो इस स्लो स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन अल्काइल हेलाइड। चूंकि ये स्टेप में अल्काइल हेलाइड के अंदर ब्रेकेज होती है, इसलिए इसी स्टेप में क्या होता है,
और ये जो है, अब इसमें दूसरी अहम बात ये है, इसमें हमने देखा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पर डिपेंड कर रहा है। चूंकि इस स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक ही नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पर। न्यूक्लियोफाइल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये चूंकि अकेला है इसलिए 1 लिखेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल साथ होता तो यहाँ पर फिर 2 लिखते, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल भी है। नाउ तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अब इसमें चूंकि 2 मॉलिक्यूल कर रहे थे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अब इसमें एज 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सो इट्स मॉलिक्यूलैरिटी इज 1, जबकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2 थी इन द केस ऑफ SN2। नाउ द पॉइंट नंबर 9, अब ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप भी होता है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 10, इट विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड की मौजूदगी में होता है। अब आखिरी पॉइंट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन होता है ये स्टेबल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट SN1 मैकेनिज्म। और इसमें इंपॉर्टेंट एक नोट है, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन गिव SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म एज वेल। जैसा कि मैंने आपको बताया दैट SN1 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देती हैं, जबकि जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है SN1 मैकेनिज्म देते हैं, जबकि ये बीच में रह जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है, ये भी जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों शो करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ SN reactions. These are the substrates, these are the nucleophile and what is produced and the leaving group. My dear students, first of all, when ethyl bromide is reacted with nucleophile OH, bromide ion will be removed and OH nucleophile will attach here, and in this way ethyl alcohol is produced. In the second one, आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। इन द थर्ड रिएक्शन, व्हेन साइनाइड इज रिएक्टेड विद इथाइल ब्रोमाइड, देन इथाइल साइनाइड विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ब्रोमाइड आयन विल बी रिमूव्ड एज लिविंग ग्रुप। नाउ व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज रिएक्टेड विद इथाइल ब्रोमाइड, देन व्हाट विल हैपन, CH3 CH2 NO2 will be produced and bromide ion will be removed. Similarly, in the next reaction, when ethoxy group is attached, as nucleophile is reacted with then bromide ion will be removed, and in this way ether will be produced, ethyl methyl ether, and bromide ion will be removed as leaving group. Very important short question from the exercise. Convert ethyl bromide into quaternary ethyl ammonium ion. This is very important short question from the exercise, is that when ethyl bromide is reacted with ammonia, ammonia has lone pair on nitrogen atom, then ethylamine will be produced and HBr will be removed. And in the second step, when this ethylamine is reacted with इथाइल ब्रोमाइड, अब ये नाइट्रोजन 2 Na2 थे, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन, ये जो इथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा। इन दिस वे डाई इथाइल अमीन विल बी फॉर्म्ड एंड HBr विल बी रिमूव्ड। इन द थर्ड स्टेप, व्हेन डाई इथाइल अमीन is
further reacted with ethyl bromide, then what will happen? Then this hydrogen will be also removed and triethyl amine will be produced and HBr is also formed. And in the last reaction, friends, now when when this ethyl bromide is reacted with triethyl amine, then this nitrogen has lone pair. दिस नाइट्रोजन का ये लॉन पेयर है, जबकि ये जो इथाइल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना लॉन पेयर जो है नाइट्रोजन, अपना लॉन पेयर इस कार्बन को जो अल्फा कार्बन है इसको डोनेट करेगा एंड इन दिस वे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन and in this way quaternary ethyl ammonium ion will be produced, CH3 CH2 holds twice N positive. This is called quaternary ethyl ammonium ion and bromide ion will be removed. This is very important long question or short question because it consists of 4 steps of chemical reactions. Now when HS group is reacted with, as nucleophile is reacted with ethyl bromide, then what will be produced? Ethyl thioalcohol is produced, CH3 CH2S, and bromide ion will be removed. And at the last when sodium acetate is reacted with ethyl bromide, then ethyl acetate will be produced and sodium bromide will be removed. Thank you very much my dear students, viewers and spectators for watching my video. मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई है then please like and subscribe my channel and also ask your friends to subscribe my channel and please also share my video with your friends as well. Thank you.